Good morning, everyone. Yes, am I audible? Okay. So, yes, actually, I have been waiting for the students because hardly 39 students have joined. But of course, we cannot wait further. So we will start with our lecture. So if you remember, in last lecture we have started with the MS Excel. Okay. So as you can see on the screen, I have already opened the Excel sheet. One file I have opened. Now this is actually a basic file in which some data is there already. Some data I have entered so that we can just check out some of the important functions of the Excel in latter part. But yes, if you want to see a blank page, so I can just show you. So this is how the Excel looks. So once you open Microsoft Excel, so it looks like this. Okay, many rows, many columns are there. So as we have discussed earlier, MS Excel this is a software which is mainly used for calculations, graphs, and what if analysis. Okay, so if you change any content of a cell and if any formula is dependent on that particular cell, then the recalculation is done automatically. So these are some of the features of Excel. One by one, we will see all the features and all the ribbons available inside this MS Excel. So we will start now exploring the MS Excel. Okay, now as we have discussed earlier in MS Excel, this is what the window looks like, and as you can see, it is almost exactly a copy of Microsoft Word. So in Microsoft Word also we have seen some of the features such as you can see this one. This is quick customize that is quick access toolbar. So this is also available with MS Excel. Now as Word, Excel, PowerPoint, all these are Microsoft's product. Okay, क्योंकि इसको combinedly बोला जाता है MS Office because these particular tools are mainly used in office purposes. तो ऑफिस में जो भी काम होता है ना तो मोस्टली ऑफिस में ऐसे ही यही जो सॉफ्टवेयर है या यही जो टूल्स है इनका यूज किया जाता है एंड फॉर दैट रीजन माइक्रोसॉफ्ट ने उसको नाम ही दिया है, पूरे पैकेज को नाम दिया है, दैट इज एमएस ऑफिस. तो उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है मोस्ट ऑफ दो सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर ऑफिस यूज ओनली. ओके, so as you can see, even in Word also we have seen some of the important tabs such as home, insert, page layout and so on. यहाँ पे थोड़े tabs कम रहेंगे but कुछ additional tabs are also there. So as you can see, this is formulas is one of the tab, data is one of the tab, ठीक है, and review view ये Word में भी available थे. So we will see all these particular tabs and अब देखो home, insert and page layout. ये टैब अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जितने भी ग्रुप्स है तो वो ग्रुप्स ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रुप्स है जो वर्ड में हमने देखे थे. दैट इज एज यू कैन सी द फर्स्ट वन, दैट इज क्लिपबोर्ड इज देयर, देन फॉन्ट, अलाइनमेंट, तो ये तो वर्ड में भी हमने देखे थे. सिमिलरली apart from that, some new groups are there, that is number, then style, that is about this sales ka style. Then if you want to insert a particular row or column, then you can insert a cell from here also. And last one, that is about the editing. If you want to edit a particular document, डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, एक्सेल शीट बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्ड में जो हम लोग काम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर करते हैं. यहाँ पे जो हम काम करेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज एक्सेल शीट. ठीक है, सो इसी के ऊपर वॉट एवर एडिटिंग यू वांट टू डू, दैट पर्टिकुलर पार्ट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप. ओके, so I have shown you multiple things. Again I will tell you some of the important part of this Excel. So as you can see, अब यहाँ पे कुछ नया नया जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सो हमने टैब एंड ये रिबन जो होता है वो हमने देख लिया. नाउ थोड़ा सा नीचे आएंगे. सो दिस पर्टिकुलर एरिया, ये देखो एकदम एंड में ऊपर देखो मैंने सिलेक्ट किया है, आपको दिखाई देता रहेगा, वहाँ पे लिखा है A1. सो दैट इज एक्चुअली नोन एज अ रेफरेंस एरिया. सो ये क्या इंडिकेट करता है कि कौन सा सेल आपने सिलेक्ट किया है. ठीक है,
सो नाउ अगर आप देखोगे ना, तो एक्सेल शीट में मैंने कौन सा सेल सिलेक्ट किया है, A1, इसीलिए वो A1 दिख रहा है। नाउ सपोज मैं यहाँ पे, ये देखो जे का कॉलम है एंड जे के कॉलम में 10, ये अगर मैं यूज करूंगा तो नाउ यू कैन सी देयर, ये देख सकते हो आप, अभी क्या दिख रहा है आपको, J10। सो वॉट एवर सेल यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, तो वो वहां पे उसका रेफरेंस देगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रेफरेंस एरिया। उसी के आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है एफ ऑफ एक्स करके, एक ये दिख रहा है। नाउ बेसिकली दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, सो इट रिप्रेजेंट्स दैट इन दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे आगे जो है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इस एरिया को फॉर पुटिंग अप द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, एंड फॉर दैट रीजन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, देन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, जस्ट अभी इसको, ऑलरेडी वो पूरा इन इसके जूम इन पे ही है। सो इफ यू सी, अगर आप थोड़ा सा टैप करके देखोगे आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो नाउ यू कैन सी ये सिलेक्टेड सेल जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, वहाँ पे नीचे देखो, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के यहाँ पे ना कुछ एक एडिशनल पार्ट जैसे दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, फिल हैंडल। तो उसके ऊपर जाओगे ना तो देखो प्लस सिंबल बन रहा है ना। सो दैट यू कैन ड्रैग दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड कॉपी ऑल द कंटेंट इनसाइड दैट कॉलम, दैट पर्टिकुलर सेल। सो जस्ट आई विल शो यू, अगर मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया एंड नाउ आई वांट कि ये 1 जो है ना, ये सब जगह पे आना चाहिए, और भी मुझे बहुत सारे कॉलम में 1 चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज, ये देखो इसके ऊपर जाओगे ना, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर जाके जैसे ही प्लस आएगा ना, तो उसको पकड़ो, क्लिक करो एंड ड्रैग करो नीचे। तो आप देखोगे जहां तक मैं ड्रैग करूंगा ना, सब जगह पे देखो 1 1 1 1 1 ये सब कुछ आ चुका है। यस, एंड नॉट इवन नंबर, अगर मैं कुछ टाइप भी करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मुझे अटेंडेंस लगाना है, तो मैंने टाइप किया प्रेजेंट। ओके, अब प्रेजेंट मैंने टाइप किया, सो नाउ यू कैन सी, अब मुझे हर इसमें प्रेजेंट चाहिए, तो ये देखो। यस, सो दिस इज हाउ वी कैन डायरेक्टली डू द थिंग्स, दैट इज, अगर कॉपी करना है एंड बहुत सारी जगह पे आपको डाल देना है, तो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट यू कैन यूज दिस फिल हैंडल। ओके, देन व्हाट वी कैन से, और भी क्या क्या है यहाँ पे नया। सो यू कैन सी हियर वर्टिकल बार इज देयर, ये ऊपर नीचे जाने के लिए वर्टिकल बार है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार इज देयर, ये साइड में है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शीट टैब्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट शीट 1 तो नाम दिया है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज यू कैन सी शीट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो दिस इज नोन एज अ शीट टैब्स। तो जो एक्सेल जब आप फाइल ओपन करते हो, एक एक्सेल फाइल में नंबर ऑफ शीट्स विल बी देयर, हाउ मेनी, दैट पर्टिकुलर पार्ट वी विल सी लेटर। ओके, एंड अगर इसी शीट्स में से अगर आपको नेविगेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे नेविगेशन बार है। सो नाउ वी आर करेंटली एट 5th नंबर शीट, जो एक्टिव दिख रहा है, ये देखो, है ना। अब अगर मुझे पीछे पीछे जाना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कितने शीट्स है, 5 शीट्स है, वो सामने सामने आपको दिख रहे हैं। इसीलिए वो, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ शीट्स रहेंगे ना, तो यू नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर टैब। ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, चलो, और 9 10 11 12, ये देखो आपको शीट्स ऐड करने, तो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस आइकॉन, ये देखो इंसर्ट वर्कशीट, यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने, मैं 14 पे हूँ, एंड अगर मुझे पीछे पीछे जाना है, तो ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो 4th, अभी नीचे पीछे आएगा 3 2 1। ओके, एंड आगे जाना है, तो ये देखो अभी यहाँ पे एंड वाला कौन सा है मेरा, 10 है ना। एंड आगे अगर मुझे जाना है, तो अभी आप देखो 11 12 13 14। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू द थिंग। सो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द एक्सेल। इवन अगर आप देखोगे, ये जो पॉइंटर है, ये जो अभी पॉइंटर मैं मूव कर रहा हूँ, तो एक्सेल में देखो पॉइंटर आपको प्लस सिंबल में दिखाई देता है। दिस इज नोन एज अ माउस पॉइंटर फॉर एक्सेल।
नॉर्मल अगर आप डॉक्यूमेंट में अगर वगैरह देखोगे तो अपना जो एरो वाला पॉइंटर होता है वही हमें दिखता है, बट दिस इज प्लस पॉइंटर। ओके। इवन और भी कुछ है, दैट इज ये जो सिलेक्टेड, अब देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको ये रोज सिलेक्टेड दिख रहे हैं, एंड ये कॉलम जो है वो कॉलम सिलेक्टेड दिख रहा है। अगर मैं छोड़ दूंगा इसको, जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो उसका कॉलम का नाम और उसका रो का नाम, रो नंबर, वो आपको वहाँ पे हाईलाइट होते दिखाई देगा। Now we will explore some of the tabs which are there inside this Excel. So the first one, that is about the title bar. As you can see, ये title bar है जहाँ पे आप देख सकते हो quick access toolbar is there. Then along with that one यहाँ पे title आया है, तो जो भी नाम से आप डॉक्यूमेंट ये शीट एक्सेल शीट जब सेव करोगे तो यू कैन सी द नेम ऑफ दैट एक्सेल शीट हियर। सो मैंने यहाँ पे नाम दिया है डेमो अंडरस्कोर एक्सेल, तो वही नाम है यहाँ पे। सो दिस इज द टाइटल, वी कैन कॉल इट एज एप्लीकेशन नेम, वर्कबुक नेम बोल सकते हैं इसको। एंड द लास्ट पार्ट इज ये, दैट इज मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, रिस्टोर करना है या क्लोज करना है। तो उसके लिए तो आपका टाइटल बार जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है क्विक एक्सेस टूल बार, एक आता है आपका एप्लीकेशन नेम, दैट इज टाइटल ऑफ द वर्कबुक, and the last one, that is minimizing or maximizing or close button. Okay, then we will check out with the file tab. As you can see, this is the file tab. ये देख सकते हो आप फाइल टैब के अंदर मल्टीपल थिंग्स आर देयर, दैट इज आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो इफ एनी एग्जिस्टिंग फाइल इज देयर, देन सेव कर सकते हो, सेव एज। नाउ ऑलमोस्ट दीज पर्टिकुलर थिंग्स वी हैव सीन इन वर्ड आल्सो। सो सेम चीज है, जस्ट द थिंग इज whatever we are going to do that will be from the excel point of view। ओके, सो सेव करना है तो एक्सेल बुक सेव करना है, ठीक है। या फिर आप ये एक्सेल जो 97 टू 2003, इफ यू वांट टू मेक अ पर्टिकुलर वर्कबुक compatible with older versions, then you can go for this particular thing, excel 97 2003। सो सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, इसी को आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करना है। देन देखो, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, तो दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल इन वर्ड, एंड वर्ड में भी हमने यही सेम देखा है। इवन दिस वन, दैट इज अबाउट द प्रिंट। सो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट ऑप्शन इज देयर, क्विक प्रिंट इज देयर, प्रिंट प्रीव्यू इज आल्सो देयर। So these are the tabs which we can use, and these particular different options are available under file tab। Okay, after that we will now see some of the menu bar, जिसमें जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज अबाउट टैब बार बोल सकते हैं। सो टैब बार में आप देखोगे तो you will realize that this particular part is there, that is home, then insert, then page layout, formulas, data, review, view, and multiple more things। अगर आप कुछ नया वर्जन यूज कर रहे हो, now as I have told you earlier कि in my laptop I have 2007 version। okay, नाउ इट माइट बी पॉसिबल अगर आपके पास नया पीसी है, नया कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ पे नए वर्जन आप यूज़ कर सकते हो, सच एज से एम एस ऑफिस आप 2012, 13, अभी तो 19 भी है अवेलेबल। तो एम एस ऑफिस 2019 या अभी तो 21 भी आ रहा है आई गेस। तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन इंस्टॉल, एंड उसमें तो और ज़्यादा एडिशनल फीचर्स आर देयर इन एम एस एक्सेल। ओके, now from excel point of view, some of the important concepts we need to learn। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो सिलेक्ट किया है इसको हम बोल सकते हैं सेल। ये देखो, ये ब्लैक में जो दिख रहा है आपको, ये है एक सेल, एंड ये सेल रिप्रेजेंट करता है कि कौन से कॉलम का कौन सा रो हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया नाम, चलो मैंने यहाँ पे आशीष डाला, एक जगह पे मैंने नाम डाला, चलो से प्रकाश, एक रैंडम कुछ नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। एक जगह पे मैंने डाला से दीपाली। ओके, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि ये आशीष जो है ये कहाँ पे प्लेस है, इसका सेल नंबर क्या है, तो सेल नंबर क्या है इसका, तो वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, इन दिस रेफरेंस एरिया। एंड हर बार आपको रेफरेंस एरिया भी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर सेल यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, तो उसका रो एंड कॉलम का नाम है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। सो यू कैन सी क्विकली फाइंड आउट प्रकाश कहाँ पे है ये, तो एफ कॉलम में, कौन से रो में, 19th रो में। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सेल। नाउ
we will find out, we will learn now some of the important concepts from Excel point of view, and for that we will go to our chapter of textbooks. As you can see, this is the sixth chapter, Microsoft Excel. So we have done this introduction, इवन टाइटल बार, फाइल टैब भी हमने देख लिया क्या क्या है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. Yes, now we will talk about some of the important part of the Excel sheet. So let's start with the first one, that is cell. So now as you can see on the screen, cell, an intersection of row and column is called as cell. जो अभी मैंने दिखाया, ठीक है. Each cell has a unique reference address and can hold only one data. So वही मैंने पार्ट दिखाया कि ये जो है, that is अभी यहाँ पे आशीष मैंने डाला है. So this is known as a cell. This is the combination or intersection of a column and a row, ठीक है. एंड इसका जो एड्रेस होता है वो आप यहाँ पे रेफरेंस एरिया से भी फाइंड आउट कर सकते हो. एंड ये जो सेल होता है इसके अंदर आप एक ही डेटा एट अ टाइम पुटअप कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट कॉलम्स. नाउ द कॉलम्स आर लेबल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद द लेटर्स. आई विल शो यू दैट पार्ट. एज यू कैन सी हियर, लेफ्ट टू राइट मतलब A B C D, these are the columns, ठीक है. नाउ द फर्स्ट कॉलम इज A, सेकेंड इज B एंड सो ऑन अंटिल यू रीच Z. तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, अब पूरे तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट नाउ यू कैन सी A to Z, ये ऐसे यहाँ पे नेमिंग दिया जाता है कॉलम्स को. एंड जैसे ही Z खत्म हो जाता है तो आगे का देख सकते हो आप, देखो AA, देन AB एंड सो ऑन. ये देखो AC, AD. सो अभी A हर जगह पे A यूज किया जाएगा एंड उसके आगे ABCD फिर से यूज किया जाएगा. जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, ये देखो आई विल शो यू, AZ हो गया. अब हम B से स्टार्ट करेंगे. सो BA, BB, BC एंड फिर से आगे जाओगे तो ये देखो BZ आ गया. अब देखो B के बाद आएगा C, तो CA, ऐसे कॉम्बिनेशन आते जाएगा. सो ऐसे करते करते लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका XFD. ओके, चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ क्या है. जस्ट लेट मी कम हियर बैक. ओके, सो लास्ट आपका जो कॉलम का नाम रहेगा वो रहेगा XFD. ये ऐसा आपको कॉलम का नाम दिखाई देगा. दैट मीन्स इन अ सिंगल वर्कशीट हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर? दैट इज 16,384. 16,384 columns are there. Okay, so in a single workbook, in a single worksheet, you will be having 16,384 column. Okay, now similarly, अब ये हमने देखा कौन सा, तो ये columns के बारे में देखा हमने. Now I will talk about rows. Now rows के लिए तो यहाँ पे clear cut numbering होता है. सो नो नीड टू गो फॉर दैट AB ऐसा पैटर्न करने की जरूरत एक्सक्यूज मी, जरूरत नहीं है. एंड फॉर दैट रीजन रोज आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द लेफ्ट एज ऑफ द वर्कशीट. सो आप लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यू विल बी फाइंडिंग आउट, ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड ऐसे ही नंबरिंग, ऐसे ही रोज को नंबरिंग किया जाता है. सो द फर्स्ट रो नंबर इज 1 एंड सबसे टॉप वाला दैट इज लास्ट रो जो रहेगा उसका नंबर होता है, आई कैनॉट शो यू क्योंकि बहुत ज्यादा है नंबर वो. इट इज लाइक 10,48,576. सो दिस इज द लास्ट रो. सो टोटल हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ सिंगल वर्कशीट? दैट इज 10,48,576. इतने रोज अवेलेबल है. दैट मीन्स अगर आप देखोगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं डालता हूँ 10,48,576. सो नाउ यू कैन सी ये जो दोनों है ना, एक है ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉलम एंड ये रिप्रेजेंट करता है आपका रो. सो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 16,384 कॉलम्स आर देयर. कॉलम्स मतलब ये वाले कॉलम्स एंड रोज कितने हैं? तो 10,48,000. सो दीज आर द रोज. ओके, सो ये हो गए दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्कशीट. नाउ ये वर्कशीट क्या होता है? सो जो एक जब आप कोई भी एक नया एक्सेल फाइल ओपन करते हो एंड वहां पे
आपको जब दिखाई देता है कि यस एक पेज दिखाई देता है लाइक दिस वन, ये जो आपको सामने दिख रहा है, सो दिस इज नोन एज अ सिंगल वर्कशीट। क्या बोला जाता है, अब ये बहुत सारे जितने भी रोज एंड कॉलम्स है उन सबको मिला के इसको बोला जाता है अ सिंगल वर्कशीट। Okay, so basically worksheet is what? Worksheet is, as you can see, it is a combination of multiple columns and multiple rows. That is known as a worksheet. That is, a worksheet contains how many rows? So 10,48,576 row, and how many columns? So 16,384 columns and a particular worksheet. Now there can be a multiple worksheet, as you can see on the screen also. यहाँ पे आप देख सकते हो number of worksheets I have created here. So 1 2 3 4 5 6, तो जितने आपको चाहिए उतने आप क्रिएट कर सकते हो। ईच वर्कशीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। सो यहाँ पे अगर मैं देखो, मैं यहाँ पे फिफ्थ शीट पे काम कर रहा हूँ, फोर्थ शीट ये अलग है, फिर थर्ड शीट इसके ऊपर कुछ अलग काम किया है, सेकेंड शीट इसके ऊपर कुछ अलग काम किया है। सो हर शीट जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड ईच वर्कशीट वी कैन व्हाट वी कैन से, we can work on that each worksheet independently and individually. Okay, so you can go from one worksheet to another by pressing just वहाँ पे भी एक शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये आप यूज कर सकते हो, या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन और बाय क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड वर्कशीट टैब। तो अगर मुझे जाना है डायरेक्टली टेंथ वर्कशीट पे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। अगर मुझे लगा नहीं मुझे फर्स्ट वर्कशीट देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मूव अराउंड विद द वर्कशीट्स। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ वर्कशीट्स आर देयर, तो दोज पर्टिकुलर वर्कशीट्स आर you can use. Now the thing is, once you start with, I will just show you, मैं अभी यहाँ पे एक नया वर्कबुक ओपन करके दिखाता हूँ आपको। न्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नाउ यू कैन सी a blank workbook is there. Yes, so जब भी आप एक्सेल का फाइल ओपन करते हो ना, उसको बोला जाता है वर्कबुक। सो एन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज अ वर्कबुक एंड दिस इज द बेसिक फाइल इन एक्सेल। सो जहाँ पे भी जब भी आप एक नया फाइल क्रिएट करोगे, जस्ट आई विल शो यू, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज माय वर्कबुक। ये जो एंटायर एक्सेल का फाइल है इसको हम बोलेंगे वर्कबुक। एंड एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर देयर। सो नाउ यू कैन सी, अब ये मैंने नया क्रिएट किया है, इसीलिए इसका टाइटल आप देख सकते हो क्या दिया है, बुक 1। सो बाय डिफॉल्ट नेम उसको बुक 1 मिलता है। इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर document, excel document, so just you will go to the file tab and यहाँ पे जाके सेव करोगे, तो सेव में आपको यहाँ पे नाम पूछेगा, तो आपको जो चाहिए वो नाम आप दे सकते हो। एंड नाउ सी द टाइप ऑफ द फाइल, एक्सेल वर्कबुक। ओके, सो अभी फिलहाल तो मैं ऐसे ही उसको सेव नहीं करता हूँ, कैंसिल करके आपको दिखा रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी दिस इज आवर वन सिंगल वर्कबुक एंड इन अ सिंगल वर्कबुक एज यू कैन सी 3 शीट्स आर देयर। सो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी वर्कबुक क्रिएट करोगे ना, तो उसमें आपको 3 एक्सेल शीट्स बाय डिफॉल्ट मिलेंगे एंड दैट विल बी लेबल्ड एज शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे ही आपको दिखाई देगा। ये देखो, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। एंड नाउ इफ यू वांट टू ऐड मोर नंबर ऑफ शीट्स, तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक टैब है, दैट इज इंसर्ट वर्कशीट वाला ऑप्शन। तो जस्ट क्लिक करोगे तो और एक शीट आ गया, ये देखो, क्लिक करोगे और एक आ गया, क्लिक करोगे और एक आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। इवन ये जो शीट्स के नाम है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नाम क्या क्या है, शीट 1 2 3 4 5। तो अगर ये मुझे चेंज भी करना है तो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड जो भी नाम देना है दे दो। तो मैं यहाँ पे, चलो मैं सपोज मैं यहाँ पे जो भी अपने क्लासेस है उनका उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड मैं मेंटेन करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मुझे एस वाई बैफ के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो मुझे इस वर्कशीट को नाम देना है, दैट इज एस वाई बैफ। यहाँ पे देखो, सिंपल जस्ट आपको टाइप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये शीट 5, इसमें मुझे डालना है एफ वाई बैफ, ये देखो डाल दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे डालना है चलो टी वाई बैफ, ये देखो डाल दिया।
तो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर शीट नेम एंड वहां पे जाके आपको जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो. नाउ importantly remember one thing, whenever you are going to save this particular file, तो obviously ये workbook करके सेव होता है जो भी आप नाम दोगे उससे, but the default extension of this particular workbook is .xlsx. I will show you that part क्योंकि ये सब आपको मालूम होना चाहिए ना, याद रखना है आपको. सो नाउ यू कैन सी यस द लास्ट लाइन आप चेक कर सकते हो. So the default extension of the workbook, any of the workbook in Excel is .xlsx. Now ये 2007 के ऊपर के जो वर्जन्स है उनका सबका एक्सटेंशन यही है. उसके ओल्डर वर्जन अगर रहेगा ना तो यू विल बी गेटिंग आई गेस XLS, इतना ही दिखाई देगा. बट X कहाँ से, तो 2007 से ऊपर जितने भी नए वर्जन्स है उन सब में उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन इज .xlsx. तो यही आपको याद रखना है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ वर्कबुक इज डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए. सो क्या है, दैट इज .xlsx, ये याद रखना है. ओके, सो ये कुछ कंसेप्ट्स है. इसके साथ अभी और भी कुछ कंसेप्ट दिए, दैट इज सेल एड्रेस. तो मैंने आपको बताया कि सेल एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है. सो इफ यू वांट सेल एड्रेस के लिए क्या करना है आपको, जस्ट यू नीड टू गो टू द एनी ऑफ द सेल. चलो मैं इस सेल में गया. अब ये सेल, जैसे ही आप सेल को सिलेक्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग, कौन सा कॉलम है तो H, कौन सा रो है तो 4. सो इस सेल को मैं बोलूंगा H4 सेल. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट अ सेल नंबर. एंड याद रखना हमेशा, सेल जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो सेल का एड्रेस हमेशा इट स्टार्ट्स विथ कॉलम नेम एंड देन रो नंबर. तो ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. देन इफ यू वांट सम ऑफ द कंटेंट फ्रॉम अनदर शीट इन सम अदर वर्कबुक, देन दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो यू कैन यूज. ठीक है. तो उसके लिए आप और एक चीज है, जस्ट आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर पार्ट. So yes, from another sheet in the same workbook, so what you need to do, include the sheet name before the cell address with an exclamation mark as a separator. So they have given this particular thing, the address, देखो sheet 3 exclamation mark and B5, that particular thing refers to the cell of कौन सा, तो cell B5 of sheet number 3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है. देन फ्रॉम अनदर बुक, अगर वर्कबुक दूसरा है उसमें से अगर आपको यूज करना है तो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. एग्जांपल दे हैव गिवन. तो पहले तो वर्कबुक का नाम आएगा ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, दैट इज यहाँ पे एक दिया है salary.xlsx. एंड उसके बाद फिर कौन सा शीट है एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड उसके आगे कौन सा आप सेल यूज कर रहे हो. सो दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन use some of the content of the cell onto a particular workbook. So these are the 3 important features they provide. एक तो करंट शीट में अगर काम करना है तो डायरेक्टली वी कैन कॉल फॉर दैट कॉलम नेम एंड रो नंबर. अगर उसी शीट उसी वर्कबुक में से दूसरे शीट से अगर कुछ डेटा लेना है तो यू कैन गो फॉर दिस शीट 3 एक्सक्लेमेशन मार्क B5, ये वाला सिंटैक्स आप यूज कर सकते हो. एंड इफ यू वांट फ्रॉम अनदर बुक, then you can go for this. Now the next one is about the cell range. Now cell range is what? So 2 or more adjacent cells are referred to as a range of cells. Now ranges specify the first and last cell in the row. So I will just show you ki what do you mean by the range. अगर for example I will go to a particular, just wait, इसको मैं अभी सेव चलो कर देता हूँ, फॉर टाइम बिंग सेव नहीं कर रहा हूँ. जस्ट आई विल शो यू. अब यहाँ पे ना मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ. ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, एंड यहाँ पे भी मैं डाल रहा हूँ. चलो यहाँ पे अभी देखो मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, 1 2 डाल दिया मैंने. ठीक है. अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये 1 2 के बाद है ना मुझे कंटिन्यूएशन में नंबर चाहिए अप टू से 9, कितना भी आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो. एंड आई डोंट वांट टू टाइप दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो व्हाट यू कैन डू, ये 1 2 दोनों को सिलेक्ट करो एंड ये जो हैंडल दिख रहा है ना, फिल हैंडल, इसको ड्रैग करो जब तक आपको नंबर चाहिए तब तक. ये देखो आपको नंबर आते रहेंगे.
सो मैंने यहाँ पे 9 तक ले लिया। यस, ओके। सिमिलरली अब यहाँ पे मुझे 2 है, 2 के बाद मैं टाइप कर रहा हूँ सपोज 3, एंड नाउ आई वांट ये नंबर का कंटिन्यूशन पार्ट चाहिए। ये देखो 4 5 6 7 8, तो जितने भी नंबर से वो आते रहेंगे। देन 3, अब यहाँ पे मुझे चलो 4, तो ये दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड ये देखो मैं ड्रैग करूंगा ना इस हैंडल को, तो कंटिन्यूशन में नंबर आ जाएंगे। तो जितने भी नंबर्स आपको ड्रैग करने हैं तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन डू। इवन यहाँ पे बाकी के भी टाइप्स है सच एज दिस वन। अब देखो जस्ट अब इसको मैं ना ये कर देता हूँ 5, देन 6 7 8 9, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 10। ठीक है। अब एंड ये कॉलम में ही कर सकते हो आप ऐसे नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पे मैं ये 4 5 के बाद यहाँ पे 11 तक कर रहा हूँ। देन अब चलो ये भी एक बार आई गेस तो ये कर सकते हैं, तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी रो में भी हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन सीक्वेंस में जो नंबर जनरेट करना है तो आप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग्स। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे ऊपर से ही सिलेक्ट करना है। अगर 8 9 यहाँ पे दिख रहा है तो इसको भी मैं ये कर सकता हूँ। ये देखो 9 10। So this is how we can just use this particular fill handle. And ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं fill handle, keep in mind. Now the thing is, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ना इसका एक टेबल बनाना है। तो ऑलरेडी हमें टेबल तो दिख ही रहा है, बट अभी प्रॉपरली अगर मुझे टेबल बनाना है तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे ना ऐसे एक टेबल बना सकता हूँ। ठीक है, एक सिलेक्ट करूंगा जिसका भी मुझे टेबल बनाना है, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। एंड यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करूंगा तो नाउ यू कैन सी। अब देखो अगर थोड़ा सा बोल्डर है कर दूंगा तो नाउ यू कैन सी। अब मैं यहाँ पे मेरा हिसाब से मैं टेबल बना सकता हूँ। सपोज चलो सीरियल नंबर दिया मैंने, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड नीचे मैं डाल रहा हूँ टोटल। मुझे टोटल करना है सबका। ठीक है, फिर से यहाँ पे जो भी है हेडिंग ए, देन बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एंड लास्ट में यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ टोटल। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर टेबल ऑल्सो। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे ये जो है ये अब दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो है ए टू आई, दिस इज माय सेल रेंज, इसको बोला जाता है सेल रेंज। अब मुझे ए से ए आई तक जो भी है उसका मुझे टोटलिंग करना है। सो व्हाट आई कैन डू, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है बहुत सारे। एज यू कैन सी ऑटो सम, ये देखो ऊपर दिख रहा है आपको। एंड ये ऑटो सम पे जब मैं क्लिक करूंगा ना तो नाउ यू कैन सी। अब देखो मुझे ना यहाँ पे रेंज डिसाइड करना है, तो आप देख सकते हैं। इवन यहाँ पे आप फॉर्मूला में भी देख सकते हो। ये देखो ऊपर फॉर्मूला क्या है, सम क्या है ब्रैकेट में C5 टू L5। दैट मीन्स हम कहाँ से कहाँ तक सम कर रहे हैं, दैट इज कॉलम नंबर C एंड फिफ्थ रो से L5। अब मुझे कहाँ से चाहिए, तो D5 से चाहिए। सो यहाँ ये सेल से मुझे कैलकुलेशन करना है। यस, एम आई राइट? सो ये जो है इसमें से D से लेके ये L एंड कौन सा रो है, तो फिफ्थ रो, तो उसका मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। एंड फॉर दैट रीजन आई विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर रेंज ओनली। सो नाउ अगर मैं इसको दिखाऊंगा आपको तो आप देखो क्या आया है फॉर्मूला, D5 कोलन L5। सो दिस इज नोन एज द रेंज, तो मैंने रेंज सिलेक्ट किया। नाउ अब ये फॉर्मूला मुझे हर बार सब जगह पे यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया ना, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ ऑन रिमेनिंग रोज ऑल्सो। ये देखो इवन मैं नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ, जो अभी फिलहाल के लिए आएगा क्या, 0। वाई? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस कॉलम्स में कुछ भी नहीं है। इवन यही सेम चीज इनका अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। ये देखो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड ऑटो सम पे मैं क्लिक करूंगा तो नाउ यू कैन सी, ये देखो 45 आ गया। नाउ सिमिलरली आई कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग।
नहीं, वो 45 ही आ गया सब जगह पे। मुझे ये सिर्फ सिलेक्ट करना था एंड यहाँ से। ओके, नाउ यू कैन सी। एंड अब देखो, मैंने रो वाइज भी कैलकुलेशन कर लिया, कॉलम वाइज भी कर लिया, एंड इन सब का टोटल भी कर लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द कैलकुलेशंस यूजिंग सेल रेंज। तो सेल रेंज सिलेक्ट करना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सेल्स एंड उसका रेंज। तो नाउ यू कैन सी, जब भी टू और मोर एडजेसेंट सेल्स आप यूज करते हो तो दैट इज रेफर टू एज अ रेंज ऑफ सेल्स, and ranges specify the first and the last cell in the row. Okay, row, column or rectangular area, whatever you want to use. So now you can see E1 colon E2, तो ये याद रखो कोलन होता है बीच में, it specifies the range. So E1 colon E12, so all cells in the column E from row number 1 to row number 12. सिमिलरली अगर B3 से C12 तक आपको यूज करना है, तो ऑल सेल्स इन द रेक्टेंगुलर एरिया बाउंडेड बाय B3 at upper left and C12 at the lower left. So this is how we can select a particular cell or area. देन अब यहाँ पे दिया है सिलेक्टिंग अ रेंज, तो कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, आइदर विद द माउस, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया माउस से करके, इवन विद द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पे भी आप यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट विद द एरो की मूव द सेल पॉइंटर टू द अपर लेफ्ट सेल इन द रेंज, एंड देन होल्ड डाउन द, मतलब शिफ्ट की यूज करके आप कर सकते हो। सो ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पे माउस का, ये देखो माउस का यूज करके मैंने दिखाया आपको, है ना। तो ये माउस का यूज करने के बाद आप देखोगे तो आप जो भी एरियाज है वो उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये कहाँ से कहाँ तक किया मैंने, सो D4 से लेके L13 तक मैंने सिलेक्ट किया है। तो सिमिलरली आप आपके कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो शिफ्ट की यूज करो, ये देखो शिफ्ट की, मैं माउस से नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि कर्सर देखो ऊपर ही है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, जो भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड से मैं एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो नाउ यू कैन सी, आप कीबोर्ड से भी क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्शन कर सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, देन टू एंटायर दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम जस्ट वी नीड टू क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडिंग। सो क्या करना है, अगर एक पूरा का पूरा रो आपको सिलेक्ट करना है या कॉलम, चलो कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है, तो ये देखो ये जो हेडिंग है इसके ऊपर क्लिक करो तो ये पूरा कॉलम नीचे तक वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इवन अगर मुझे ये पूरा रो सिलेक्ट करना है, ये 14 नंबर वाला, ये देखो तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका। तो उसके हेडिंग पे जाके आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज रेंजेस एंड कैसे सेल्स को आप ये कर सकते हो। नाउ एज यू कैन सी, सिलेक्टिंग अ एंटायर वर्कशीट, तो अगर मुझे पूरा का पूरा वर्कशीट यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप यू कैन क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल बटन ऑफ वर्कशीट। तो वर्कशीट पे जाके आप सिलेक्ट ऑल बटन भी कर सकते हो, या फिर आप मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो अभी मुझे पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, तो वो आप कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये देखो ये ऊपर दिख रहा है आपको रोज एंड कॉलम के यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ABCD है एंड यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे ऊपर जो ये एक छोटा सा पार्ट है ना, इसको आप बोलोगे सिलेक्शन वाला टैब। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, नाउ यू कैन सी एंटायर वर्कबुक इज सिलेक्टेड। अब देखोगे अभी, देखो एंटायर वर्कबुक इज सिलेक्टेड। तो ये पूरा का पूरा शीट जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है, वर्कशीट, सॉरी वर्कबुक नहीं बोल रहा हूँ, एंटायर वर्कशीट आई हैव सिलेक्टेड। So this is how you can create that particular thing also. Now if you want your cursor keys or a mouse to move to any cell on the worksheet, so you can also press F5 and then go to the function key। तो function key का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल ये देखो फाइंड एंड सिलेक्ट, यहाँ से आप ये हमने सेम चीज़ हमने देखा है वर्ड में भी। तो कंट्रोल F करके भी आप फाइंड कर सकते हो। तो पूरे वर्कशीट में अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 117, चलो सो आई विल फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर पार्ट कहाँ पे है। ओके,
सो ये ओपन नहीं हो रहा है, सो आई विल फाइंड आउट। चलो टोटल, टोटल कहाँ पे है, फाइंड ऑल। ये देखो दो चीज़ें दिखे आपको। सो जैसे ही फाइंड करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस वन इज ऑल्सो देयर टोटल, एंड यहाँ पे दूसरा वाला टोटल भी है, देखो। यस, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट एनी ऑफ द थिंग इनसाइड अ पर्टिकुलर वर्कशीट। सो F5 का आप यूज़ कर सकते हो गो टू के लिए, या फिर यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर, यहाँ पे दिखाया है ये देखो, फाइंड वाला ऑप्शन, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू वाला ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। So this is how we can use a worksheet efficiently for our purpose as per the requirement. Now, what is data? Now normally Excel sheet जो है वो use किया जाता है to insert the data. Okay. Now the thing is डेटा जब आप यूज करते हो तो डेटा विल बी इन फॉर्म ऑफ एनी ऑफ द थिंग। सो इफ जस्ट फॉर एग्जांपल वी कैन टेक कि आपके रिलेटेड डेटा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, सो दैट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डेटा। उसमें टेक्स्ट भी रहे हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप सबका इंफॉर्मेशन सेव करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं आपका नेम ले सकता हूँ, एड्रेस ले सकता हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे आपका आपका मोबाइल नंबर का चाहिए, मोबाइल नंबर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे आपके एकेडमिक का रिकॉर्ड चाहिए, तो दो सेमेस्टर में आपने कितना किया एंड एग्रीगेट कितने मार्क्स है, तो वहाँ पे आप इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। सो बेसिकली द डेटा इन द स्प्रेडशीट इज ऑफ फोर टाइप्स। आप एक तो टेक्स्ट यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, डेट एंड टाइम यूज कर सकते हो, एंड इक्वेशन, दैट इज फॉर्मूला। नाउ द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या है, तो ऑब्वियसली वॉट एवर कैरेक्टर्स यू आर गोइंग टू एंटर, सो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आर नोन एज द टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट एंट्री बोला जाता है। अब ये टेक्स्ट एंट्री जो है ये हमेशा लेफ्ट जस्टिफाइड होता है बाय डिफॉल्ट। लेफ्ट जस्टिफाइड मतलब क्या, तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे, आई विल शो यू, जब भी मैं टाइप करूंगा ना, सपोज से एड्रेस, तो नाउ यू कैन सी ये लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है, एंड आपको जब आप उसको ये कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये लेफ्ट ओरिएंटेड ही रहेगा, लेफ्ट साइड से है ना। नाउ अगर आप नंबर कुछ टाइप करोगे, आई विल शो यू, ये देखो 1 2 3 टाइप करते वक्त आपको लेफ्ट ओरिएंटेड दिख रहा है, बट जैसे ही आप उसको बाहर जाओगे तो आप देखोगे तो वो राइट जस्टिफाई हो जाएगा, देखो। सो नंबर्स आपके हमेशा राइट साइड से आएंगे, आएंगे मतलब राइट साइड से टाइप नहीं होंगे, राइट जस्टिफिकेशन होगा उसका। एंड जो भी टेक्स्ट आप एंटर करोगे उसका जस्टिफिकेशन हमेशा होता है लेफ्ट। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। ओके, then as you can see date and time, yes, we can use date and time, but Microsoft Excel treats that particular thing as a number only. By default date and time is right justified, तो date and time भी अगर आपको डालना है तो वो भी right justified होता है। आपने देखा रहेगा बहुत से बार जब भी मैं आपका अटेंडेंस लेता हूँ तो अटेंडेंस में, अब देखो ये जस्टिफाइड बाय डिफॉल्ट होता है, इट डज नॉट मीन कि ऐसे ही रहेगा। अगर मुझे चाहिए ना, मैं दिखा सकता हूँ, इसको मैं अलाइन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट। तो मेरे पास अलाइनमेंट का यहाँ पे टैब है, एंड यहाँ पे देखो सेंटर वाला भी है, ये राइट, देखो सबको मैं राइट लेफ्ट जस्टिफाई कर सकता हूँ, राइट जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, एंड इफ आई वांट सब सेंटर में हो तो ये देखो मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ। बट जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट कि कैरेक्टर्स वॉट एवर यू आर गोइंग टू पुट, तो उसका बाय डिफॉल्ट जस्टिफिकेशन लेफ्ट है, एंड नंबर्स का बाय डिफॉल्ट जस्टिफिकेशन इज राइट। नाउ सेम गोज फॉर डेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेट डालता हूँ तो अभी डेट भी व्हाट वी कैन से, जस्ट आई विल शो यू, आज का डेट क्या है, दैट इज 17, तो 17/08/2021। ओके, अब यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि, ओके नाउ यू कैन सी, तो डेट इज ऑल्सो लेफ्ट जस्टिफाइड, बट अगेन आई विल टेल यू कि अगर मैं यहाँ पे उसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो आई कैन डू इजीली, बट इट इज लेफ्ट जस्टिफाइड, कीप इन माइंड बाय डिफॉल्ट। ओके, सो नाउ यू कैन सी जो भी जस्टिफिकेशन है इट इज सॉरी राइट जस्टिफाइड है, डेट एंड टाइम। सो इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन चेंज द जस्टिफिकेशन, आप जस्टिफिकेशन चेंज कर सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया। even if you want to use that AM PM 12-hour clock या 24-hour clock, so all these particular settings are also there,
ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिस द टाइम ऑन 24 आवर क्लॉक। टाइम जो होता है वो 24 आवर क्लॉक में वो शो करता है। बट इफ यू वांट टू चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग, तो यू कैन गो टू द सेटिंग्स एंड वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। So just I will show you some of the examples if they have given. ओके, सो नाउ यू कैन सी, ये देखो डेट। सो अगर आप जो भी फॉर्मेट है उसके अलावा अगर आपको खुद का फॉर्मेट अगर ये करना है, तो टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर डेट एज अ सीरियल नंबर और डिस्प्ले अ टाइम एज अ फ्रैक्शन, व्हाट वी नीड टू डू, होम टैब पे जाओ, फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट सेल, देन नंबर एंड देन जनरल। सो यहाँ पे आप इवन आप कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो। एज यू कैन सी, ये देखो डेट, तो 1999 कॉमा 5 कॉमा 15 डाला है, माइनस डेट 1999 कॉमा 5 कॉमा 10, तो इट विल गिव द सब्ट्रैक्शन। तो आप सब्ट्रैक्शन एडिशन भी कर सकते हो कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि समझो आज का दिन है, आज का एक डेट है, एंड चलो गणपति वेकेशन का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो, तो जस्ट यू कैन फाइंड आउट कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर गणपति वेकेशन, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेट का कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो यूजिंग दिस एम एस एक्सेल, एंड फॉर दैट रीजन ओनली एम एस एक्सेल इज सो इम्पोर्टेंट इन नाउ डेज। मैंने जैसे बताया कि ऑफिस में बहुत सारे लोग क्योंकि आजकल देखो जो भी काम चल रहा है वो सब डेटा के ऊपर ही चल रहा है। एंड व्हाट दे नीड फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, दैट दे नीड टू डू द डेटा एनालिसिस most of the time. So for that reason, Excel is the very simple tool which multiple offices use nowadays. And even Excel में और भी बहुत ज़्यादा extra part है, that particular thing we will see definitely in next chapter. Now even apart from the date and time, you can see formulas are also there. So worksheet formulas always start with an equal to sign और प्लस साइन। आई विल शो यू दैट पार्ट, ये दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला है, यस दिस वन। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला था ऑटो सम का, तो नाउ यू कैन सी ये है आपका फॉर्मूला बार एफ एक्स वाला ये। सो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद दैट इक्वल टू साइन, एंड देन उसके आगे अगर कुछ फंक्शंस है इनबिल्ट तो वो फंक्शंस रहेंगे। इफ यू वांट टू डू सम मैनुअल कैलकुलेशन, सो दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन आल्सो यू कैन डू। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे चलो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है परसेंटेज। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ परसेंटेज। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ओके नाउ आई एम टाइपिंग से परसेंटेज। ओके, एंड अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो व्हाट आई कैन डू, पहले इक्वल टू साइन, आप ऊपर फॉर्मूला बार में देखो, एंड जस्ट मैंने डाल दिया 45। ओके, आउट ऑफ से 200, एंड उसके अंदर मुझे क्या करना है, चलो मैं यहाँ पे पहले प्रॉपरली लिखता हूँ। सो मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा 45 आउट ऑफ 200। ओके, एंड इसको मैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे हम स्टार एस्ट्रिक यूज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये अगर मैं एंटर करूंगा तो नाउ यू कैन सी परसेंटेज 22.5, एंड यही फॉर्मूला सब जगह पे यूज करना है। तो नाउ यू कैन सी, ये देखो अभी सॉरी यहाँ पे just the thing is I have used that particular formula just for this cell। ओके मैंने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली 45 ये यूज़ किया है। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे ना एम वाला ये यूज़ करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे 45 नहीं लिखूंगा, सो जस्ट आई विल यूज एम। अब M5 मैंने यूज किया है, सो M5 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो दिस विल गिव यू द आंसर। अब मुझे बाकी चीज़ों के लिए भी करना है, तो जस्ट इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, देखो इसका भी आ जाएगा, ये देखो हर एक का अलग अलग आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला बार आल्सो एंड फॉर्मूला इफेक्टिवली फॉर योर एंटायर वर्कशीट। तो आपको जो भी फॉर्मूला जैसे भी यूज करना है, दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन गो फॉर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वल टू साइन। यस यस यस, मैं बंद कर रहा हूँ लेक्चर। सो इक्वल टू साइन एंड प्लस साइन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलाज भी डाल सकते हो।
So this is what the Excel sheet is all about. So what we will do, अब इसमें भी और चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू डू द एंट्रीज एंड हाउ टू एडिट द वर्कशीट एंड ऑल। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन हमने आज किया वो आपको समझा रहेगा। आई विल जस्ट अ मिनट, आई नीड टू टेक द अटेंडेंस। ओके okay, so today's date is 17 and I will take the attendance 3 6 10 13 3 6 10 13 14 18 21 14 18 21 23 24 23 24 27 28 29 30 34 36 40 okay 42 44 48 44 48 after that 49 53 53 60 2 3 9 10 11 12 2 3 9 10 11 12 18 20 21 18 20 21 24 26 26 then 32 34 35 37 38 41 thank you everyone 41 then 43 खुशी then चिन्मयी ओके रीना है क्या नो सो थैंक यू गाइस।